Hi friends, this is Akriti. Welcome to our second webinar of Legal Next in collaboration with MECANS, fighting cybercrime during this lockdown. Cybercrime से कैसे लड़े lockdown के दौरान. If you can hear me all right, please send me a thumbs up on the chat box. Thank you. 21 अप्रैल हमारे लास्ट वेबिनार में हमने कुछ अहम टॉपिक्स कवर किए जो काफी कॉमन देखने को आ रहे हैं ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, be it regarding frauds on matrimony sites, EMI moratorium, or e-commerce frauds. Since these occurrences are very common, the webinar was a big success. I would also like to share a response with you via a video we had received. It's a good feedback that we have received from few eminent people from the industry that I would like to share with you through this video. Legal Next, in association with MECANS, organized a free webinar on fighting against cybercrime during Corona by Mr. Makrand Wagh on 21st April at 5 p.m. Makrand Wagh, ex-law enforcement officer and digital fraud investigator, explained the types of cybercrime and the steps taken to safeguard oneself from such ill activities. Advocate Abhishek Upadhyay, Principal Legal Counsel with Legal Next, shared the legal aspect and the reporting mechanism against cybercrime. The webinar was massively appreciated and bagged 10K plus viewers on its first day. We thank all our viewers for such an amazing response. We are honored to have your feedback and are thankful for your valuable time and appreciation. We are soon coming up with session 2 on cybercrime and social media. Hold back and get ready to clear all your queries on cybercrime and social media. Coming live soon. The past decade, we have been very active on social media, and that too through many portals. And we have been sharing personal stories, pictures on these media platforms, completely oblivious who could be stalking us. So, from our previous webinar, we have Mr. Makrand Wagh, who was a law enforcement officer and a digital forensics investigator. Sir has about 13 years of in-depth experience in investigating such type of occurrences in high-profile cyber crimes. Advocate Abhishek Upadhyay, on the other hand, we have a high court, we have a lawyer from High Court of Mumbai, जो senior counsel है. इनको कई सालों से साइबर लॉ और डिजिटल फॉरेंसिक्स लिटिगेशन के जैसे केसेस हैंडल करने का एक्सपीरियंस भी है. Advocate Abhishek is here today to explain you the intricacies of these kinds of issues that you usually come across. So, Makrand sir, welcome once again. I would like you to throw some light on these topics. Thank you. Thank you, Akriti. Good evening, friends. Thank you very much for the feedback of last seminar. And जैसे कि मैंने बताया था कि इस सेमिनार में स्पेशल क्या है, तो इस सेमिनार में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं साइबर प्लेटफॉर्म की, जिसमें सोशल मीडिया क्राइम्स बहुत हो रहे हैं. यानी साइबर पे जो सोशल मीडिया साइट्स है उसका उपयोग करके बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं. तो ये फ्रॉड किस तरह के हैं, इस फ्रॉड से कैसे बचना है, और अगर आप दुर्भाग्यवश फंस गए तो उसमें आपको कैसे निकलना है. यहाँ पे मैं कुछ डेटा बताना चाहता हूँ. इंडिया में लगभग 5.6 करोड़ लोग इनकम टैक्स भरते हैं और 56 करोड़ पीपल आर ऑन इंटरनेट. तो ये दो फिगर एक दूसरे से मेल नहीं खाती, यानी कुछ ये नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इतने ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो साइबर फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं. रिपोर्टिंग मैकेनिज्म मालूम नहीं, इसलिए लोग प्रॉपर रिपोर्ट नहीं कर पाते या किसी को बचा नहीं पाते. तो ये सेमिनार में हम आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में साइबर क्राइम से कैसे बचना है सोशल मीडिया पे वो बताएंगे. अब ये साइबर क्राइम होता क्यों है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मीडियम है, इंटरनेट मीडियम में इतना फ्लेक्सिबल हो चुका है कि इस पे आपका डेटा कोई भी वेबसाइट कैसे भी होस्ट करती है. आप पे उस वेबसाइट पे सोशल मीडिया साइट्स पे बहुत सारे यूजर्स लॉग इन करते हैं फेक
आइडेंटिटी दिखा के सामने वाले को फंसाते हैं। तो कैश फ्रॉड्स, पर्सनल फ्रॉड्स बहुत है। ये मीडियम, ये कॉम्प्लेक्स है, टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोडिंग वगैरह बहुत है, तो इसमें एरर भी होते हैं, क्रिमिनल्स उसका फायदा लेते हैं। अगेन ये जो डिजिटल एविडेंस है ये टैम्पर हो सकता है और डिस्ट्रॉय भी इजीली हो सकता है, तो उनको पकड़ने के बाद वो कितना फंस सकते हैं उस पर उनको मालूम है कि क्या क्या करना है। तो एक तो ऐसा मीडियम है जो बहुत फ्लेक्सिबल है, जहाँ पे उनकी आइडेंटिटी क्लोन हो सकती है और वो वहां पे उसको एविडेंस को टैम्पर कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस केस में सोशल मीडिया साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ चुके हैं। जो नॉर्मल सोशल मीडिया हम साइबर क्राइम सुनते हैं, उससे अलावा कुछ साइबर क्राइम्स में अभी यहाँ बताना चाहता हूँ। कोरोना 19 जो लॉकडाउन हुआ है उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ने वाले हैं, ये हमारा असेसमेंट है। जैसे कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, यानी बच्चे इंटरनेट पे बहुत ज्यादा देर तक बैठे हैं, पूरा दिन वो घर में, कोई बाहर नहीं जा सकता, तो वो इंटरनेट पे क्या कर रहे हैं उनके पेरेंट्स को मालूम नहीं है। इतनी सारी साइट्स खुल चुकी है, लाखों डोमेन नए रजिस्टर हो चुके हैं। यहाँ पे लोग, बच्चे या जो इंटरनेट को यूज नहीं कर सकते, वो उसको कैसे एक्सेस करें, डेटा दे रहे हैं, कुछ घर की क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है किसी को मालूम नहीं। सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग बहुत हो रहे हैं। यहाँ पे बच्चों से या जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं या उनको फंसा के, जो प्रीवियसली यूज भी करे उनको फंसा के उनकी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, कौन से कंपनी में काम कर रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहा है, पासवर्ड शेयर किए जा रहे हैं, साइबर स्टॉकिंग, साइबर केसिंग, यानी यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे भी हो चुके हैं जहाँ पे आप आपके जीपीएस लोकेशंस, आपके सिस्टम के जीपीएस लोकेशंस थ्रू दैट एप्लीकेशन जो फ्रॉडस्टर है उनके पास जा रहे हैं। तो वहां पे वो आपका लोकेशन जानते हैं, आपका दिनचर्या, आप कहाँ क्या कितने बजे कहाँ पहुंचते हो वो जानते हैं, तो आपके साथ क्राइम्स हो सकते हैं। तो आपको सचेत करने के लिए ये सेमिनार रखा है। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि एक एग्जांपल ले ले तो डॉक्यूमेंट स्कैनर नाम की एप्लीकेशन है। अभी ये डॉक्यूमेंट स्कैनर्स आपको बहुत प्रॉपरली यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे आप आपके डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे हो। नो डाउट आपको अगर स्कैन करना ही है तो वो डॉक्यूमेंट अगर इंटरनेट से कनेक्टेड एप्लीकेशन और आप स्कैन कर रहे हो, 99% आपका डॉक्यूमेंट कहीं बाहर जा रहा है। अभी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी गलत आदमी के हाथ में लग जाए तो क्या होगा। डॉक्यूमेंट स्कैनर यूज करना है तो आप इंटरनेट बंद रखो, डॉक्यूमेंट स्कैन करो, वो डॉक्यूमेंट दूसरी जगह सेव करो और फिर इंटरनेट चालू करके जिस मीडियम से भेजना है उस मीडियम से भेज दो। इस सेमिनार में हम इसके बारे में इन डेप्थ आपको बताएंगे, केस स्टडीज बताएंगे, केस स्टडीज में इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हर्डल्स होते हैं वो बताएंगे, एविडेंस को कैसे हैंडल करना है वो बताएंगे और लीगल चीज बताएंगे। इस सेमिनार में लीगल चीजें क्या क्या डिस्कस होगी वो बताने के लिए मेरे सहकारी अभिषेक आपको ज्यादा बता सकते हैं। अभिषेक, ओवर टू यू प्लीज। So, social media crimes, as the name suggests, कोई भी क्राइम या अपराध, anything that is against the law, जब वो सोशल मीडिया को यूज करके किया जाता है तब उसको बोलते हैं सोशल मीडिया क्राइम। नाउ लेट मी टेल यू विच आर द मोस्ट फेमस सोशल मीडियाज दैट जहाँ से ये क्राइम होता है। तो फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, दीज आर ऑल द सोशल मीडिया चैनल्स जहाँ पे सबसे ज्यादा क्राइम होता है। India is now the second largest user of internet in the world. 35 crore people in India are on social media. तो ये सोशल मीडिया से क्राइम्स कैसे होते हैं, उसके लिए लीगल बाइंडिंग क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल के अभी सोशल मीडिया क्राइम्स को हैंडल करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एनेक्ट किया गया था। तो उसमें से कौन से सेक्शंस लागू होते हैं, क्या टाइप की पनिशमेंट्स होती है, एविडेंस कैसे हैंडल किया जाता है, ये सारा चीजें वी विल डिस्कस इन टुडेज सेमिनार। ओवर टू यू आकृति। For the valuable insight. While we are on this topic, I know most of our viewers as well as the citizens of this country, maybe worldwide, surely have come across hackers tampering with our data and hacking into our system. We have Makaran sir with demonstration on this. Can we have the demonstration, Makaran sir? Okay, तो यहाँ पे हम आपको क्या दिखाना चाहते हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आइडेंटिटी थेफ्ट कैसे होता है, आपकी आइडेंटिटी कैसे थेफ्ट की जाती है, आपके यूजर आईडी कितने आसानी से आपके सिस्टम से आपके तरफ से लिए जाते हैं। मैं आपको स्क्रीन दिखाऊँ, अब ये स्क्रीन पे आपको मैं डिटेल्स दिखा दूँ एग्जैक्टली क्या क्या हो सकता है। लेफ्ट पार्ट है जो लेफ्ट पार्ट है वो लॉगर है, की लॉगर है। राइट पार्ट है एक ऐसा एप्लीकेशन जहाँ पे मैं लॉग इन करना चाहता हूँ, इसमें यूजर आईडी पासवर्ड दोनों चीजें दिख रही है।
ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अभी यूजर आईडी पासवर्ड डालना चालू किया तो लेफ्ट साइड में लॉगिन चालू हो चुका है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो लॉगिन हो रहा है, जो मैं टाइप कर रहा हूँ test1@, वहाँ पे लॉगिन चालू हो चुका है। ये सारी कीवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड लॉगर में नोट हो रहे हैं। अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखिए हाईलाइट करके कि ये देखिए ये की लॉगर्स आपके आ चुके हैं हमारे पास। ओके, गॉट इट। नाउ पासवर्ड, अभी हम पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालते ही पासवर्ड भी आना चालू हो चुका है, माय पासवर्ड ऐसा मैं डालने वाला हूँ, माय पासवर्ड। सो ये देखिए यूजर आईडी और पासवर्ड आ गया 100%। मैं लॉग इन करूंगा अभी। अभी मैं पासवर्ड दिखाता हूँ कहाँ मिला हमें, हाईलाइट करके। एक मिनट। ओके, लॉग इन नहीं हुआ, एरर बता रहा है, क्योंकि जो पेज हमने बनाया था वो पेज लीगल पेज था ही नहीं। आप यूआरएल देख सकते हैं, वहां पे कुछ आईपी एड्रेस था, लेकिन पेज दिखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट 360 का पेज था। ओके, तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी किसी भी कंप्यूटर को लॉग इन करते हो, किसी दोस्त के कंप्यूटर पे लॉग इन करते हो, आप किसी साइबर कैफे में लॉगिन करते हो या किसी अननोन कंप्यूटर पे लॉगिन करते हो, तो अगर उसमें ये की लॉगर एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो आपका यूजर आईडी पासवर्ड जा चुका है। आपको अगर आपके यूजर आईडी पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखने हैं तो अननोन कंप्यूटर को लॉगिन मत कीजिए, और जिस कंप्यूटर पे आपको करना ही पड़ रहा है तो वहां पे एक विंडो आती है जहां पे लिखा हुआ रहता है कि क्या मैं ये यूजर आईडी पासवर्ड शेयर कर सकता हूं क्या, तो उस पे आप ना कीजिए। ओके, तो बहुत ही आसानी से आपके यूजर आईडी पासवर्ड जा सकते हैं। यहाँ पे कमेंट विंडो में हमें कुछ आया है कि आप इंग्लिश में बताइए, लेकिन ये सेमिनार इसलिए हिंदी में हम बता रहे हैं क्योंकि ये टेक्निकल लैंग्वेज है, हम पूरा इंग्लिश में कर सकते हैं, लेकिन अगेन टू रीच दिस टू मासेस, सब जगह पे सब लोगों को मिलने के लिए हम ये बहुत कठिनाई से हिंदी में करें, और इंग्लिश में करते तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन हिंदी में इसलिए करें कि बहुत ज्यादा आसानी से हम आपको समझा सके। ओवर टू यू आकृति। थैंक यू। अभी हमारे लास्ट वेबिनार में हमें कई क्वेश्चंस मिले हमारे व्यूअर्स की ओर से। उनमें से देयर इज वन क्वेश्चन दैट आई हैव टेकन अप एंड वुड लाइक टू प्रेजेंट टू यू। ये क्वेश्चन मिस्टर आनंद वर्मा की तरफ से है। काफी कॉमन इशू है दैट पीपल हु प्ले गेम्स ऑनलाइन कम अक्रॉस। प्लीज लिसन टू हिज कंसर्न। उनसे कैसे बचा जाए, बिकॉज मेरा नाम आनंद वर्मा है। सो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता था कि जो सोशल मीडिया एंड जो साइबर अटैक्स हैं उनसे कैसे बचा जाए, बिकॉज मेरे घर में ही एक केस हुआ था। मेरा जो छोटा भाई है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पबजी गेम बहुत फेमस है और बहुत चल रहा है, तो मेरे छोटे भाई ने पबजी गेम पे लॉगिन किया फेसबुक के थ्रू, एंड फेसबुक पे उसको मैसेजेस आने लगे कि आप XYZ अमाउंट पबजी गेम में इन्वेस्ट कीजिए और आपको पबजी गेम के बहुत सारे पर्क्स मिल जाएंगे, बहुत सारे गन्स या नए नए व्हीकल्स या नया मैप मिलेगा। सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड आउट ऑफ इंटरेस्ट उसने वो बिना पूछे हमसे किसी से हमारे अकाउंट में से वो 10-12 हज़ार रुपये लेके वो पबजी गेम में डाल दिए। उस यूजर को जिसने उसको बोला था डालने के लिए, उसने वो सारे पैसे उसको सेंड कर दिए। एंड आफ्टर नोइंग दैट उसको वो पबजी के गेम में उसको कुछ भी बेनिफिट्स नहीं मिले या कुछ भी नहीं हुआ, एंड वो पैसे भी लॉस्ट हो गए, दैट टू विदाउट आस्किंग पेरेंट्स और विदाउट आस्किंग मी। सो इस तरीके के जो भी गेम्स हैं, फॉर दैट मैटर पबजी, ब्लू व्हेल एंड टू एन एक्सटेंट पोकेमॉन गो, जो भी गेम्स हुए थे, सो उन सब गेम्स में ऐसे काफी बच्चों के ऊपर परिणाम पड़ा है, काफी बच्चों को न जानते हुए उनके हाथ से ये सब हुआ है। सोशल मीडिया के थ्रू पैसे गए हैं या कोई किसी बच्चे की जान भी गई है। सो इन सब चीजों से कैसे बचा जाए, इसका मैं उत्तर जानना चाहूंगा। थैंक यू।
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आनंद जी। आप जैसे बहुत सारे लोगों ने आपके कंसर्न्स या क्वेश्चंस हमें भेजे हैं, आउट ऑफ दैट हमने आपका प्ले करके बताया है। तो आपका क्वेश्चन था कि ऑनलाइन जो गेमिंग एप्लीकेशंस है या गेमिंग वर्ल्ड है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बहुत सारे माइनर्स और टीनेजर्स बहुत ज़्यादा ऑनलाइन गेमिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं। यानी अपार्ट फ्रॉम एक्चुअली प्रैक्टिकल गेमिंग, वो जब बाहर भी घूम रहे हैं तो उसके ही बारे में बात करें तो साइकोलॉजिकली दे आर इन्वॉल्व। दूसरा, ये जो प्लेटफॉर्म है इससे क्या क्या चीज हो सकती है। एक तो साइबर बुलिंग, ये चीज अब तक इंडिया में कम आई थी या अब तक नहीं आई थी, लेकिन विदेशों में ये चीज बहुत है। साइबर बुलिंग ये टर्मिनोलॉजी ऐसी है कि इस पे ऑनलाइन जो ग्रुप है उसमें किसी बच्चे को छुड़ाया जाता है, ऑब्ससीन कंटेंट अपलोड किया जाता है, उसको मेंटली हैरेस किया जाता है, जिससे बच्चे बहुत ही ज्यादा तनाव में आ जाते हैं। कुछ लोग सुसाइड कर देते हैं, कुछ लोग कुछ इंसिडेंट कमिट कर लेते हैं। इससे बचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा। प्राइवेसी प्रॉब्लम्स बहुत है इस गेम खेलते समय। आपको क्या मालूम है क्या, वो लोग चैट भी कर सकते हैं ग्रुप में, 1-to-1 कर सकते हैं, प्राइवेट चैट भी कर सकते हैं। बहुत लोगों को ये मालूम नहीं कि आपके बच्चे किन लोगों से बात कर रहे हैं, कौन से लेवल के लोगों से बात कर रहे हैं, वो माइनर है सामने वाले या मेजर है या एल्डर लोग हैं जो उनसे बात कर रहे हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन, डिजिटल पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, जैसे कि कंसोल क्या है, कंप्यूटर क्या है, डिवाइसेस क्या है, जिसकी वजह से अगर मैं हैकर हूँ और मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई तो मुझे हैक करने में बड़ी आसानी होगी। मैं पूछ लूंगा कि कौन सा एंटीवायरस है, कब एक्सपायर हो रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन चैटिंग के दरमियान मैं पूछ सकता हूँ, मुझे मिल गई तो मैं इजीली अटैक कर सकता हूँ। वेबकैम हैक हो जाते हैं। पहले वेबकैम अलग से लगते, लेकिन अब हर मशीन में वेबकैम आता है। तो ये वेबकैम ऑनलाइन गेम बंद भी होने के बाद वेबकैम ऑन रह सकता है, ऑन हो सकता है। वो चीज होती है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल विजुअल्स कहीं जा सकते हैं। हिडन फीस, जैसे आपके केस में बच्चे से पैसे मांगे गए, इसमें ऐसा होता है कि इनिशियली उनको फ्री में ऑफर किया जाता है और जब वो मेंटली इन्वॉल्व हो जाता है, बहुत आगे के लेवल पे जाते हैं, तो उनको बता के फिर वो पैसे भरने के लिए इंसिस्ट किया जाता है। ऐसी बहुत सारी केसेस रजिस्टर हुए जिसमें बच्चों ने खुद के पेरेंट्स के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स, क्रेडेंशियल शेयर कर दिए जस्ट टू बी इन दैट गेम, उस गेम में रहने के लिए, या उनको कुछ ऑफर मिल रही है उसके लिए। मालवेयर आ सकते हैं, क्योंकि जब आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हो तो वहां पे जो चैटिंग कर रहे हैं उसमें मालवेयर यानी हिडन मालवेयर भी आ सकता है कि जो आगे लिंक है उसके पीछे कुछ मालवेयर है जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे मैं एक टर्मिनल यूज करना चाहता हूँ, ऑनलाइन प्रेडेटर्स यानी जो बड़े लोग जो माइनर बच्चों से बात कर रहे हैं ऑनलाइन ड्यूरिंग गेम। ये एक इंसिडेंस या 2-4 गेम ऐसे हो चुके हैं जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड भी किया था। तो एक ऐसी बहुत बड़ी कम्युनिटी यानी लोग हैं जो ऑनलाइन बैठ के ये सब चीजें एग्जीक्यूट करते हैं, अपने से छोटे बच्चों को परावृत्त करते हैं ये सब करने के लिए। लेकिन प्लेटफॉर्म क्या यूज होता है, आपका सोशल मीडिया यानी आपका साइबर यूज होता है। तो इससे बचने के लिए आपको आगे की चीजें करनी है। पहले तो आपके बच्चे कौन सा गेम खेल रहे हैं ये आपको मालूम रहना चाहिए। उसके फीडबैक्स, उसके रिव्यूज इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप पढ़ लीजिए वो अच्छा है या बुरा है, उसके कमेंट्स इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो पढ़ लीजिए, आप खुद देख लीजिए, उसके बाद ही वो खेलेंगे। दूसरा, पेरेंट्स, एक टर्मिनोलॉजी हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। अब ये पॉजिटिवली है, निगेटिवली आई डोंट गो टू इट, बट अगर इंटरनेट है तो देयर शुड बी हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। मेरा ये कहना है कि आप आपके बच्चे पे ध्यान रखिए। आपके मशीन्स या आपकी लैपटॉप लेके बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जो स्क्रीन है वो पूरे घर को विजिबल हो, घर के तरफ हो, ना कि वो ऑपरेट करने वाला पीछे बैठा है और वो कोई स्क्रीन नहीं देख सकता। बच्चों को एक कंट्रोल रहेगा कि यस मुझे सब लोग देख सकते हैं, तो मैं ऐसी चीजें कर सकता हूँ जो ऑब्जेक्शनेबल ना हो। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये मैं सबको सलाह देता हूँ, बार बार देता हूँ, कि आपके बच्चों के फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में आपका नाम एज अ फ्रेंड होना चाहिए। आप आपके बच्चों के फ्रेंड लिस्ट में होने चाहिए, क्योंकि उनके साथ जो फ्रेंड्स है वो इनको क्या शेयर कर रहे हैं वो आपको दिखेगा, और एक कंट्रोल भी रहेगा कि लोगों को पता चलेगा कि नहीं इनके पेरेंट्स इनके फेसबुक लिस्ट में है, तो मैं कुछ ऐसी चीजें नहीं कर सकता, कुछ ऐसे ऑफर नहीं दे सकता जो इनको हार्म कर सके। एक लेवल की ऑथेंटिसिटी मिल जाती है। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं। ओवर टू यू अभिषेक। This is also a very rampant type of social media crime.
अभी सोशल, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये सारे जो क्राइम्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर इसका कॉग्निजेंस या उसका ऑफेंस एनलिस्ट किया जाता है। अभी ये टाइप का जब क्राइम होता है तो दिस इज अ टिपिकल केस के जहाँ पे आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या पर्सनल डेटा स्टोर या ये लोग स्टील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे क्राइम्स आते हैं वायलेशन ऑफ प्राइवेसी के अंडर। जब भी किसी का प्राइवेसी या प्राइवेट सेटिंग्स या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टील होता है, ये टाइप के क्राइम्स को लगभग 3 साल की सजा दी जाती है मैक्सिमम, एंड 1 लाख तक फाइन। ओवर टू यू आकृति। Thank you, Abhishek sir, and I hope your answer has addressed the query of Mr. Anand Verma, जिनको ये issue, as well as to rest of the other crowds. We have this case regarding matrimony. So matrimony and social media प्लेते हुए बहुत cases report हो रहे हैं। इसी मुद्दे में एक interesting case भी है अपने पास। मकरंद सर, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? तो मुझे मैं केस बताने वाला हूँ। अरुण केस को एक्सप्लेन करने के लिए हम छात्र का नाम नेहा और अरुण ऐसा करते हैं। इस केस में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज हुआ था और मिलने के लिए, और उसके बाद उसका मिसयूज हुआ था तकलीफ देने के लिए। तो मैं शुरू करता हूँ। बेसिकली नेहा ने एक मैट्रिमोनी साइट के पोर्टल पे नाम रजिस्टर किया जहाँ पे वो अरुण को मिली। अरुण से वो चैटिंग चालू हुई, फेसबुक व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन चालू हो चुका था। 3-4 महीने एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के बाद नेहा ने पहली गलती की, उसने खुद का फेसबुक आईडी और पासवर्ड अरुण को शेयर कर दिया। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि ये मैंने बार बार देखा कि बहुत सारे लड़के लड़कियां खुद के फेसबुक यूजर आईडी एंड पासवर्ड एक दूसरे को शेयर करते हैं। दिस इज योर पर्सनल आइडेंटिटी, आप इसको किसी से शेयर ना करें। दूसरी बात, आगे जाते समय नेहा ने अरुण से उनका प्लान हुआ कि अभी शादी कर रहे थे, तो नेहा ने अरुण को बताया कि आप मुंबई आ जाइए, मेरे घर वालों से मिल लीजिए। तो अरुण नेहा को बताता रहा कि मुझे कुछ कैश की जरूरत है, आप कृपया मेरे अकाउंट में कैश डालते रहिए। नेहा ने 2-3 बार इग्नोर किया। चौथी बार नेहा ने बताया कि मेरी मदर बीमार है, आप मिलने के लिए आइए। अरुण ने ना कहा और वही उसका चालू था कि आप मुझे कैश थोड़ी अकाउंट में डाल दीजिए। नेहा को सस्पिशियस फील हुआ, इसलिए उसने अरुण को इग्नोर करने का डिसाइड किया। गुड डिसीजन शी हैड टेकन। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने बताया, नेहा का फेसबुक यूजर आईडी और पासवर्ड अरुण के पास था। अरुण ने नेहा के फेसबुक आईडी से उसका अकाउंट को एक्सेस किया, उसके फेसबुक अकाउंट पे ऑप्शन कंटेंट डाले और उसके फेसबुक लिस्ट में जितने भी लोग थे उनको वल्गर मैसेज डालना चालू कर दिया। दूसरी चीज उसने ये की कि नेहा के कॉन्टेक्ट डिटेल्स और फोटो उसने किसी प्राइवेट डेटिंग ऐप पे डाल दी, जहाँ पे नेहा को बहुत सारे फोन आना चालू हो चुके थे और वो परेशान हो चुकी थी। नेहा ने कंप्लेंट रजिस्टर की। आगे जाके मैं बताने वाला हूँ कि इसमें जब उसको ट्रेस किया गया तो क्या क्या दिक्कत आई। तो जैसे कि मोबाइल का लोकेशन था अरुण का, नेहा के पास उसका नंबर था, वो था राजस्थान का। वहां तक पहुंचने के बाद पता चला कि जहाँ का लोकेशन है वहां वो मिल ही नहीं रहा है। वहां पे 4-5 दिन सर्च करने के बाद लोकेशन वहां मिलता था लेकिन वो मिलता नहीं था, यानी नाइट लोकेशन वहां का मिलता था, वो मिलता नहीं था। फिर उसके CDRs में, यानी जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स है मोबाइल के, उसमें उसको जो मोस्ट SMS आते थे वो किसी फूड सप्लाई सर्विस प्रोवाइडर के थे। यहाँ पे मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं पूरा इलेबरेट कर रहा हूँ कि फूड सप्लाई, यानी बहुत सारे एप्लीकेशन है वो नाम ले सकता हूँ लेकिन नाम नहीं लेना चाहता। तो वो हमने जब वो चेक किया तब जो फूड सप्लाई सर्विस एजेंसी थी उसके जो डिलीवरी पर्सन थे उनको फोटो दिखाया गया कि इसको पहचानते का, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। फिर एक चीज की गई कि लोकली उस फूड सप्लाई एजेंसी की तरफ से एक ऑफर ब्रॉडकास्ट किया गया उस लोकल एरिया के लिए, जहां पे बताया गया कि आपको 1+1 यानी आपको कुछ फ्री दिया जाएगा। अरुण ने अप्रोच किया और अरुण ने बताया कि हम उसको एड्रेस पूछा तो अरुण बोला कि हम खुद लेने आएंगे, लेकिन अरुण आया नहीं। वो बड़ा होशियार था। 3 दिन के बाद अरुण का फोन नॉट रीचेबल हो गया और उसके बाद उसका नेक्स्ट लोकेशन मिला वो दिल्ली का था। 3 दिन बाद मोबाइल का लोकेशन दिल्ली का मिलता रहा, उसके बाद वो गुजरात का मिला। तो डाउट ये क्रिएट हुआ कि शायद ये ड्राइवर है। तो लोकल कैब सर्विस प्रोवाइडर के पास जाने के बाद फोन नंबर और मोबाइल फोटो दिखाने के बाद ये इन्फॉर्मेशन मिली कि यस अरुण वहां पे एज अ ड्राइवर है, जिसने वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके, वो जो एप्लीकेशन यूज करके वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है।
यहाँ से उसका जो एप्लीकेशन था उस एप्लीकेशन में माल फंक्शन किया गया और अरुण को बताया गया कि आप ऑफिस आइए और आपका सिस्टम रिपेयर करके दिया जाएगा। अरुण जब आया तब उसको पकड़ा गया। अभी 2-3 चीजें इसमें सामने आई कि अरुण का लोकेशन तो राजस्थान का मिलता था फ्रिक्वेंटली, लेकिन अरुण वहां दिखता क्यों नहीं था। तो अरुण ने बहुत सारी चीजों का स्टडी किया था और अरुण ये चीज करता था कि वो हर रोज रात को मोबाइल साइलेंट मोड में रख के, एक बहुत बड़ा डेंस एरिया था, उस डेंस एरिया में किसी कोने में वो मोबाइल रख देता था, तो उसका नाइट लोकेशन वो मिलता था। सुबह आके वो मोबाइल लेके जाता था और वो फिर उसका रूटीन काम में रहता था। जहां वो मोबाइल रखता था उस एरिया में नहीं रहता था, उससे 3 किलोमीटर दूर वो रहता था और वो लोकेशन बदलता रहता था। अरुण को जब पकड़ा गया तो उसने लगभग 150 लड़कियों को चीट किया था, सेम ऐसे ही यूजर आईडी पासवर्ड लेके हैरेसमेंट करके फिर एक्सटॉर्शन के लिए पैसा मांगना, अलग अलग तरह से। और तीसरी चीज, अरुण ने ये सब किया तो इसमें नेहा की क्या क्या गलती थी। नेहा की पहली गलती थी, उसने उसका यूजर आईडी पासवर्ड किसी अननोन आदमी को शेयर किया। दूसरी गलती थी, एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता, वहां पे उसने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया। तीसरी, जब प्रॉब्लम हो रहा था तब उसने कंप्लेन कर देना चाहिए था, जो उसने किया नहीं। ये सब चीजें मद्देनजर रखते हुए क्या क्या करना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नॉट ट्रस्ट पीपल ऑनलाइन। आप कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी प्रसिद्ध हो, ऐसा वो बोल रहा है तो आप उस पर ट्रस्ट मत कीजिए, जरा भी मत कीजिए। डोंट शेयर योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। आपके यूजर आईडी और पासवर्ड आपकी आइडेंटिटी है, आप कैसे किसी को दे सकते हैं, आपको नहीं देना है। और तीसरा, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको इमीडिएटली कंप्लेंट करनी है। इस केस स्टडी की लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए मैं अभिषेक को रिक्वेस्ट करता हूं। ओवर टू यू अभिषेक, प्लीज। पूरा केस मैंने सुना। दिस इज अ वेरी कॉमन केस दैट और अ कॉमन टाइप ऑफ फ्रॉड, सोशल मीडिया फ्रॉड दैट इज हैपनिंग दीज डेज। अभी ये केस में एक्चुअली हुआ क्या है, ये केस में किसी और का आइडेंटिटी चुरा के किसी और के साथ फ्रॉड किया जा चुका है। So this is a open and shut case which is under the section of identity theft. इस चीज का ये कवर किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 66C में, जहाँ पे बोला जाता है कि किसी ने भी अगर इलीगल तरीके से या विदाउट द कंसेंट अगर किसी का आइडेंटिटी यूज किया फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पसेस ऑफ कोर्स, तब जाके सेक्शन 66 लागू होगा। नाउ सेक्शन 66C के लिए 1 लाख रुपीज फाइन, अप टू 1 लाख रुपीज फाइन या अप टू 3 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट है। अगर ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो जनरली एक छोटा सा फाइन देके अप टू 1 लाख रुपीज के अंदर फाइन देके विदाउट इम्प्रिजनमेंट उसको छोड़ दिया जाता है। बट अगर ये पता चलता है कोर्ट को ही इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर या फिर उसने एक सीरियस ऑफेंस किया है जहाँ पे उसने एक नहीं, जैसे ये केस में अनेक लोगों को उसने फंसाया है ये फेक ऑनलाइन आइडेंटिटी यूज करके, तो उसके लिए एक सीरियस ऑफेंस पोस्ट किया जाएगा जहाँ पे जजमेंट में उसको आइदर टोटल 3 साल की सजा और पूरा 1 लाख का फाइन दोनों एक साथ हो सकते हैं। ओवर टू यू आकृति। Thank you, Abhishek sir. Thank you for the valuable insight that you have from the legal aspect. Now, if we talk about WhatsApp, another dating platform, now sexual harassment depressingly काफी common phenomena in India में. So, Makran sir, I want you to tell us how prone are we to it online using these kinds of platforms. Thank you, Akriti. यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं या डेटिंग एप्लीकेशंस हैं या चैटिंग एप्लीकेशंस हैं, ये सब एप्लीकेशंस जो हैं, इसमें ये एक दिक्कत ये है कि आप जिससे चैट कर रहे हो, यू डोंट नो हु इज ही और हु इज शी, वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो कौन है वो आपको मालूम नहीं है। तो इसमें मैं आपको केस स्टडी बताने के लिए अगेन पात्र का नाम हम अमोल पकड़ते हैं। सो अमोल इज वर्किंग इन आईटी कंपनी, वो आईटी कंपनी में काम कर रहे थे और उन्होंने उनका एक सोशल मीडिया ऐप डाउनलोड किया जिसमें लड़के लड़की एक दूसरे से चैटिंग करते हैं। चैटिंग करते समय
अभी इस जनरली हम सोचते हैं कि ये जो सोशल मीडिया क्राइम से लड़कियों के अगेंस्ट ज्यादा होता है, तो वो ऐसा नहीं है। लड़कों को भी ट्रैप किया जाता है, उनको भी एक्सप्लॉइट किया जाता है, बहुत फाइनेंशियली तकलीफ होती है, उसमें उसका एक उदाहरण है। तो आईटी कंपनी में काम करता था, उसने एप्लीकेशन डाउनलोड किया और उसको एक लड़की मिली जिसके साथ वो चैट कर रहा था ना। दैट लेडी, जो लड़की थी वो महाराष्ट्र की नहीं थी, वो पश्चिम बंगाल की थी, वेस्ट बंगाल की थी। तो जब चैट करते समय एक दिन लड़की ने अमोल को बोला कि आप आ जाइए वेस्ट बंगाल हमें मिलने के लिए। अमोल बिना सोचे समझे वहां चले गए। अमोल वहां जाने के बाद पूरा एक दिन रुके। दूसरे दिन जब वो निकलने के लिए जा रहे थे, तो वो लड़की ने बताया कि आप ऐसा कीजिए कि आप हमें पैसा दे दीजिए, नहीं तो हम पुलिस को कंप्लेंट कर देंगे कि आप मेरा हैरेसमेंट किया है और उसके लिए आप वहां से यहाँ तक आए हो। अमोल को लगा कि वो मजाक कर रही है, लेकिन लेडी ने वही किया। लेडी ने इमीडिएटली पुलिस कंप्लेंट कर ली, अमोल को अरेस्ट किया गया। जिस रात को अमोल वहां रुका था, उस रात को वो लड़की ने अमोल का मोबाइल लेके उसमें से जितने भी पर्सनल चैटिंग्स हुए थे उसके व्हाट्सएप या टिंडर पे, दोनों एप्लीकेशन, दोनों चैटिंग डिलीट कर दिए थे। इस वक्त अमोल के पास कुछ भी जस्टिफिकेशन नहीं था कि वो मुंबई बेस्ड आईटी स्टूडेंट है और वो वहां क्या कर रहा है। ना उसका ऑफिस वहां पे, ना उसकी कोई मीटिंग प्लान थी, ना उसका कंपनी वहां पे। इस केस में अमोल को दिक्कत हुई। वो जब केस हमारे पास आया, तब हमने एज अ कंसल्टेंट उसको बताया कि जो मोबाइल का डेटा है, वो मोबाइल को जो स्टोरेज डेटा है, वो डेटा रिट्रीव हो सकता है, डिलीटेड डेटा रिट्रीव हो सकता है। डिलीटेड डेटा रिट्रीव करके वो डेटा रिकंस्ट्रक्ट करके प्रेजेंट किया गया, जहां पे जो चैटिंग हुई थी उसमें दिख रहा था कि वो लड़की अमोल को वहां बुला रही थी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो प्रॉब्लम्स है वो यही है कि आपको जो सामने वाला आदमी या लेडी या जो कोई दिख रहा है, यू डोंट नो कि वो लीगल है इलीगल है, वो कौन सी मंशा से आपको अप्रोच कर रहा है। तो डोंट ट्रस्ट एनीबडी। दूसरी चीज, आपका जो इक्विपमेंट है वो आप किसी को हैंड ओवर ना करें, उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखें और ये किसी के पास भी नहीं जाना चाहिए। दिखते समय वो नॉर्मल मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जो कुछ दिखता होगा, लेकिन उसके अंदर जो डेटा है, साइबर केसेस में डेटा स्टैंड होता है, हार्डवेयर नहीं। तो आपको डेटा प्रोटेक्ट करके रखना है। और अगेन मैं जैसे बोलता हूँ, यूज यूर इंटरनेट वाइजली। आपका इंटरनेट सोच समझ के प्रॉपरली यूज करना चाहिए। इस केस के लीगल एंगल को एक्सप्लेन करने के लिए आई विल रिक्वेस्ट अभिषेक। ओवर टू यू अभिषेक प्लीज। आपका मोबाइल या कम्युनिकेशन डिवाइस जो हम साइबर क्राइम के जार्गन्स में यूज करते हैं, तो वो टाइप का क्राइम हुआ है कि जिसमें उसने एक कम्युनिकेशन डिवाइस, मतलब मोबाइल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको एक्सेस किया है and without the consent or without the permission and with a fraudulent intention to extract money from him। उसने किया क्या है कि वो मोबाइल में लॉगिन करके जो इम्पोर्टेंट डेटा था, जो प्रूफ किया जा सकता है कि दिस पर्सन या ये लड़की जो एक दूसरे को मिले, वो एक म्यूचुअल कंसेंट के वे से मिले या जो भी उनके बीच में हुआ एक म्यूचुअल तरीके से हुआ। तो ये प्रूफ करने के लिए जो डेटा था विच कैन बी यूज्ड एज अ डिजिटल एविडेंस, वो उसने जाके डिस्ट्रॉय किया है। तो सेक्शन 66B ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यहाँ पे अट्रैक्ट होता है। अभी कभी कभार क्या हो जाता है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू कन्विक्ट एन ऑफेंडर। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वी शुड ऑल्सो कपल दिस एंटायर ऑफेंस विद द ऑफेंसेस लिस्टेड अंडर द इंडियन पीनल कोड, आईपीसी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आईपीसी के अंडर सेक्शन 384 के जिसमें एक्सटॉर्शन हुआ है कि जहाँ पे किसी चीज के लिए आपसे पैसा मांगा जा रहा है। सेकेंड थिंग, चीटिंग, जो हम 420 के नाम से नॉर्मल टर्म्स में या नॉर्मल लोगों में जाना जाता है, ये ऑफेंस इसमें अट्रैक्ट होता है। और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के जहाँ पे आपने किसी का ट्रस्ट तोड़ के उसके साथ एक फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ कोई एक्टिविटी की है। इसमें अगर और कोई लोग शामिल होंगे तो इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी एनेक्ट होता है। जब इंडियन पीनल कोड के कुछ सेक्शंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के कुछ सेक्शंस जब ये क्यूमुलेटिव लगाए जाते हैं ऑफेंडर पे, तब जाके एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है। क्योंकि व्हेन यू टॉक अबाउट द डिजिटल एविडेंस स्पिरिट की तरह होता है। आप उसको जितना ओपन रखोगे उतना वो उड़ जाने की चांस है। तो यहाँ पे फॉरेंसिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल
तो जब भी ये सारे एविडेंसेस कोर्ट में सबमिट होते हैं तो ये एविडेंस पे क्या क्या फॉरेंसिक्स हुआ है, फॉरेंसिक्स इन टर्म्स ऑफ के वो एविडेंस जो निकाला गया है वो ओरिजिनली वो डिवाइस से एक्सट्रैक्ट किया है क्या, जो यूनिक आईडी जो हम बोलते हैं जिसको हैश वैल्यू बोला जाता है इन द साइबर सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी, तो ये हैश वैल्यू फॉरेंसिक्स लैब ने नोट डाउन करना चाहिए। आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन इज डन वो प्रॉपर हैंडओवर होना चाहिए। जब ये सारी चीजें सीजर प्रोसीजर्स वगैरह जो होते हैं, जब ये सारी प्रोसीजर्स फॉलो की जाएंगी तब जाके ये स्ट्रॉन्ग केस एक बनेगा। ओवर टू यू आकृति। Thank you, Abhishek sir and Makran sir, for your valuable insight on this. Now, चलते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की ओर। Mobile Wi-Fi to connect to the internet on the go, also known as hotspot. Makran sir, what are the ways we can fall prey to hacking using the mobile Wi-Fi device? Okay. जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेंजरस है, वैसे आपके इक्विपमेंट भी बड़े ही सेंसिटिव, मैं कहता हूँ डेंजरस है। अभी मैं जो केस बताने जा रहा हूँ ये केस बड़ा टेक्निकल, बड़ा डिटेल बताना चाहता हूँ, आप सुन लीजिए क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि अपना जो डिवाइस है उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगेन हम एक्सप्लेनेशन के लिए पात्र का नाम यहाँ रुपेश पकड़ते हैं। तो रुपेश एक कंपनी के मालिक है और एक साउथ मुंबई के एक बिल्डिंग में रहते हैं और वो उनकी पत्नी और उनका लड़का, ऐसी एक फैमिली उनकी रहती है वहां पे। और एक दिन अचानक उनको अननोन नंबर से, जो इंटरनेट जनरेटेड नंबर्स रहते हैं जिसको बैकट्रेस नहीं कर सकते, वैसे नंबर से एसएमएस आना चालू हो चुके थे। नो सरप्राइजिंगली वो एसएमएस का कंटेंट था वो ये था कि वो जो घर में बात कर रहे हैं वो बात जैसे कोई सुन रहा है और उनको टेक्स्ट करके भेज रहा है, ऐसे हो रहा था। इनिशियली उन्होंने इग्नोर किया लेकिन 2-3 दिन ये चलता रहा, फ्रस्ट्रेट हो गए वो। फिर उन्होंने खुद का मोबाइल गाड़ी में रख दिया और वो घर में लाते ही नहीं थे, मोबाइल गाड़ी कार में रहता था। लेकिन नेक्स्ट डे उनके वाइफ के मोबाइल से ये चालू हो चुका था, उनके वाइफ के मोबाइल पे ये मैसेजेस आना चालू हो चुके थे। ये इरिटेटिंग हो रहा है। तो जब उसका एक्चुअली क्या हो रहा है ये जानना चाहा तब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। तो रुपेश को मोबाइल बदलने के लिए बताया गया। रुपेश ने मोबाइल बदला, 3-4 दिन सही चलता रहा, चौथे दिन के बाद फिर से सेम चालू हुआ। इस बार तो जो चीज बोल भी नहीं रहा है वो चीज आने लगी, यानी आपने क्या ब्लू शर्ट पहना है, क्या आज रेड क्यों नहीं पहना है, ऐसे एसएमएस आने लगे, विच इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग एंड इरिटेटिंग। जब उससे पूछा गया कि आपका किसी के साथ दुश्मनी है क्या है, तो उसने कहा कुछ नहीं, लेकिन हाँ एक दिन बिल्डिंग में मैं जिम में जब वर्कआउट कर रहा था तो एक बिल्डिंग में एक लड़का है उसको धक्का लगा था, तो हमारी थोड़ी कहासुनी हो चुकी थी, बाकी कुछ नहीं। इस बार क्या हो रहा है इसका असेसमेंट करके रुपेश का मोबाइल फिर से बदला गया। तीसरी बार मोबाइल बदला तब उसकी हर एक एक्टिविटी को हम नोटिस कर रहे थे कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है, एग्जैक्टली उसके डिवाइसेस में क्या क्या चीजें हो रही है। 2 से 3 दिन मोबाइल ठीक चलता रहा, हम उसकी सारी एक्टिविटी नोटिस कर रहे थे। तीसरी दिन वो मैसेजेस चालू हो चुके थे। जब हमने एक्टिविटी क्या क्या है वो एक्टिविटी लॉग्स निकाले तब पता चला कि रुपेश ने उसका हॉटस्पॉट ओपन किया था और उसके लैपटॉप से कनेक्ट हुआ था। अभी ये हॉटस्पॉट जब कनेक्ट हुआ और ये एक्टिविटी चालू हुई तो इससे रिलेट करने के लिए जब हमने मोबाइल का एक्सेस लॉग्स निकाला तो पता चला कि उसको एक बाहर का डिवाइस कोई कनेक्ट हुआ है और ये डिवाइस किसी का, उसी लड़के का था जो उनकी बिल्डिंग में रहता था, जो उनकी ऊपर की मंजिल पे रहता था। उसके वो जो लड़का था उसका जो हार्डवेयर था उसको सीज किया गया और उसका जो स्क्रिप्ट बोलते हैं कि एक्सेस करने के बाद जो स्क्रिप्ट रन करते हैं और वो स्क्रिप्ट रन करने के बाद जो डेटा है वो क्लाउड पे चला जाता है। तो एनालिसिस किया तो पता चला कि रुपेश के मोबाइल के हॉटस्पॉट से इस लड़के ने एक रैट यानी रिमोट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, जिसको हम बग बोलते हैं, बग रुपेश के मोबाइल पे प्लांट की थी। और जो बग है जब चाहे वो लड़का बटन दबाए तो उसका माइक खुल जाता था मोबाइल का और जो एम्बियंट लिसनिंग है वो एम्बियंट लिसनिंग इनके कान पे पड़ती थी। और जब सेकेंड टाइम उसने डाला तो उसने वो रैट अपडेट कर दिया और उसमें अभी वो फोटो भी खींच सकता था, तो वो फोटो भी खींच के 30 सेकंड में फोटो भी अपलोड कर रहा था। इन दिस केस रुपेश की गलती क्या थी, ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पे रुपेश की गलती ये थी, या बहुत सारे लोगों की गलती ये है कि उनके जितने भी वायरलेस कनेक्टिविटी के पासवर्ड्स हैं
बहुत वीक रहते हैं, बहुत जेनरिक रहते हैं, बहुत ऑब्वियस रहते हैं, जो इजीली क्रैक हो सकते हैं। पासवर्ड, एक्सेस पासवर्ड क्रैक करने के लिए बहुत सारे फ्री टूल्स अवेलेबल है हैकर के पास, जो इमीडिएटली आपके पासवर्ड हैक कर सकते हैं। आपका कार नंबर, आपका मोबाइल नंबर या बर्थ डेट या बच्चों के इनिशियल्स, ये चीजें डाल के अगर आप पासवर्ड बनाओगे तो आपके पासवर्ड क्रैक होंगे। आप कहीं भी बाहर जा रहे हो तो आपको बाहर जाते समय आपकी जो मोबाइल की वायरलेस कनेक्टिविटी है वो बंद रखनी है। वो अगर चालू रहेगी तो ये सब चीजें हो सकती है। और तीसरी चीज, आपका सर्फिंग पैटर्न आपको ध्यान में रहना चाहिए। आप अगर मोबाइल यूज कर रहे हो, उससे इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, आपकी सारी कैश ट्रांजेक्शन हो रही है, आपका पर्सनल डेटा उसमें है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं क्या क्या चीजें कर रहा हूँ, कौन सी चीज होने के बाद क्या क्या हो रही है। एंड अगेन, यूज दिस टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट वेरी वाइजली। अगेन इसके बारे में टेक्निकल मैंने बता दिया, लीगल बात बताने के लिए आई विल रिक्वेस्ट अभिषेक। ओवर टू यू अभिषेक। एक लीगल नहीं, आई वुड लाइक टू टेक अ 360 डिग्री जनरल पर्सपेक्टिव ऑफ दिस एंटायर सोशल मीडिया क्राइम्स। क्या टाइप के क्राइम्स को हम लोग, जैसे मैंने बताया कि सोशल मीडिया क्राइम्स क्या होता है वो मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बता दिया। क्या क्या टाइप के सोशल मीडिया क्राइम्स होते हैं। अभी एक टाइप का हो गया साइबर बुलिंग, के जहाँ पे आपके प्रोफाइल को अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस करके या अनऑथराइज्ड तरीके से आपको वल्गर या डेरोगेटरी या थ्रेटनिंग मैसेजेस भेजे जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग साइबर बुलिंग। फिर होता है आपका प्रोफाइल हैकिंग, जहाँ पे आपके प्रोफाइल का अनऑथराइज्ड वे से एक्सेस किया जाता है और वो प्रोफाइल को हैक करके किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोफाइल हैकिंग। फिर सोशल मीडिया पे काफी सारे फ्रेंडशिप स्कैम्स बहुत एक्टिव है, कि जहाँ पे कोई फॉरेनर आपको बोलेगा कि आई एम अ विडोवर, या फिर मैं ये आपके इंडिया में आना चाहता हूँ, फिर वो आपको गिफ्ट देने का एक बेट देगा, फिर गिफ्ट देने के बहाने से आपको कोई लिंक भेजेगा। तो ये सारे फ्रेंडशिप स्कैम बहुत एक्टिव है। एंड देन देयर आर आल्सो सम काइंड ऑफ परचेज स्कैम्स, के जहाँ पे जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती वो चीज का फोटो या प्राइस किसी भी सोशल मीडिया चैनल पे डाला जाता है। मिनिस्क्यूल अमाउंट की अगर चीज रहेगी तो या 500 या 600 रुपए की कोई चीज रहेगी, तो वो चीज का ये डाला जाता है कि जिसमें पैसा जाने के बाद भी इंसान बोलता है चलो यार 500 रुपए गया, इसके लिए मैं क्या जाके 10 बार पुलिस कंप्लेंट करूं, क्योंकि आगे कुछ होने नहीं वाला है। तो ऐसे टाइप के क्राइम्स भी बहुत सारे होते हैं। जो केस अभी डिस्कस हुई, इसमें सबसे बड़ा वायलेशन हुआ वाज द राइट ऑफ प्राइवेसी। हर एक का डेटा प्राइवेट रहना ये उसका फंडामेंटल राइट है। दिस राइट हैज बीन गिवन टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जब राइट हमें दिया जाता है और जब कोई वायलेशन ऑफ प्राइवेसी करता है, तो इसमें एक आईटी एक्ट में एक सेक्शन भी है जिसको बोला जाता है चीटिंग बाय पर्सोनेशन। किसी और का आईडी यूज करके या किसी और को पर्सोनेट करके ये फ्रॉड किया जाता है। few years back even there was section 66A, जहाँ पे offensive messages भेजने के लिए भी punishment थी, but that section has been now cancelled or repealed by the Supreme Court of India few years back. Over to you, Akriti. Akran and Abhishek sir, for your valuable and in-depth insight to these incidences. It's been highly informative, and I'm very glad to see the involvement of our viewers yet again. We're getting a lot of questions from the viewers even as we talk. In fact, I would like to address the question from one of the audiences, Shubham. It's regarding TikTok. Mukran, इसके बारे में आपका क्या कहना है? टिकटॉक अभी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला एप्लीकेशन है, लेकिन टिकटॉक के बारे में एक इन्फॉर्मेशन आया था कि वहाँ से डेटा लीक हो सकता है या हो रहा है, या हैकर उसको यूज़ कर रहे हैं। तो सिनारियो ये था, यानी नॉट सिनारियो, ये हो रहा था कि टिकटॉक के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हैकर्स आपको मैसेज भेज सकते थे, जिस मैसेज के अंदर मिसलेनियस जो मिलिशियस लिंक हो सकती थी, जो एक बार क्लिक होने के बाद आपके सिस्टम में आपका वायरस इंस्टॉल कर सकती थी। दूसरी चीज उसमें एक फ्लॉ ये था कि वहां पे जैसे आप टिकटॉक से वीडियो अपलोड कर सकते हो या कोई, वैसे ही कोई ही हैकर टिकटॉक अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल है तो थ्रू दैट प्लेटफॉर्म आपके जो गैलरी है उसमें फोटो और आपके वीडियोस एक्सेस कर सकता था।
ये प्रॉब्लम टिकटॉक एप्लीकेशन में था। यस, वो अगर टिकटॉक का अकाउंट है और अगर वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल किया है तो आपको सावधानी से यूज करना पड़ेगा। और अगेन ये सब एप्लीकेशंस परमिशंस मांगते हैं, तो आपको कितनी परमिशन देनी है दैट इज डिपेंड ऑन यू। जितनी कम परमिशन देनी है उतना अच्छा। ओवर टू यू आकृति। Thank you, Makran sir. I hope this addresses the answer to Shubham's question. Now we have another question from the audience. I'm just going to it. It's from Mr. Chandramani Gaikwad. It is regarding Google Mini. He wants to know whether it is safe to use because Google Mini apparently doesn't need Wi-Fi connection to connect. And he says that he heard it's recording and recognition all the voices of all the conversation. So Makran sir, इसके बारे में क्या कहना है, इनके क्वेश्चन के बारे में regarding Google Mini? अगेन गूगल मिनी या कोई भी एप्लीकेशन हो, आप जब भी इंस्टॉल करते हैं तो आपको देखना है कि वो बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस मांगता है, बहुत सारी चीज़ों का। यानी अगर मैं नॉर्मल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मैं आपको एसएमएस देख सकता हूँ, आपके एसएमएस फॉरवर्ड कर सकता हूँ, आपके गैलरी एक्सेस कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें वहाँ डाली हुई रहती है। और आप उसको यस करके जब इंस्टॉल करते हो तो आप उनको लीगली परमिशन दे देते हो। इट मे नॉट बी लीगल बट प्रैक्टिकली आप उनको परमिशन दे देते हो कि वो सारा डेटा आप एक्सेस कर लो। कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, वो एप्लीकेशन हैक हो रहा है तो हैकर्स उसको कैसे भी टैम्पर करके यूज कर सकता है। टॉकिंग अबाउट गूगल ये एक ऐसा एप्लीकेशन वो सबसे ज्यादा आपका डेटा सबसे ज्यादा रिकॉर्ड करता है और वो डेटा बेचता भी है। गूगल का कोई भी एप्लीकेशन आता है तो ये सोचना कि नहीं ये एप्लीकेशन सेफ है और मेरा कुछ डेटा नहीं ले रहा है या मैं इससे सेफ हूँ, ये अपनी गलती है। कोई भी एप्लीकेशन अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसको ब्लाइंडली यूज नहीं करना चाहिए। बहुत बार एप्लीकेशन लॉन्च होने के बाद डिफरेंट फोरम में मार्केटिंग के माध्यम से उस एप्लीकेशन के बारे में बहुत अच्छा बुरा लिखा जाता है, अच्छा ही लिखा जाता है, लेकिन उससे ट्रस्ट ना करें। आप प्रैक्टिकल यूज कर रहे हैं तो बेसिक चीज पे रखें। मैं बार बार यही चीज बोलता हूँ कि यूजिंग योर डिवाइसेज इज जस्ट लाइक यूजिंग योर कार। आपकी कार आप जितनी मेंटेन रखोगे, जितनी प्रॉपर रखोगे, उतनी वो लंबी चलेगी, वहां बंद नहीं पड़ेगी, आपको तकलीफ नहीं होगी। आपके डिवाइसेस भी वैसे हैं। आप उसमें जो एप्लीकेशन है उसको अननोन एप्लीकेशन को डिलीट कर दो। जो एप्लीकेशन में एप्लीकेशन ज्यादा परमिशन मांग रहा है वो एप्लीकेशन डिलीट कर दो। जो परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है आप मोबाइल में जाके एप्लीकेशन सेटिंग में जाके उसको डीएक्टिवेट कर सकते हो और आपका जो मोबाइल का फर्मवेयर हो आप अपडेट करते रहो। ये सब चीजें करोगे तो आप और आपका मोबाइल दोनों सुरक्षित रहेंगे। एप्लीकेशन पे कुछ डिपेंड नहीं है, आप उसको कैसा यूज करते हो उस पर डिपेंड है। Thank you. Over to you, Akriti. Thank you, Makran sir, for the answer. I hope that also suffices the question that Chintamani sir has asked. Now I'm just going to the question again. Now this looks like more of a legal question, which is coming from Angsha Park. Abhishek sir, this is for you. What due diligences should we follow calling an app? We normally don't follow terms and condition or privacy policy of any application. So what are the due diligences that we should be following? See, amendment जब 2008 में आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, तो 2008 से लेके 2011 तक जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांस हुआ उसको कवर करने के लिए काफी सारे सर्विस प्रोवाइडर्स वगैरह आ गए। उसको कवर करने के लिए there were information technology rules that were listed down by the government. अभी ये information technology rules जो है that talk about the privacy of our data. कोई भी कंपनी है जो अपना प्राइवेट डेटा यूज कर रही है, वो डेटा यूज करने के लिए हमसे एक परमिशन मांगा जाता है। दिस इज द आइडियल प्रोसीजर ऑफ लॉ। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, हमें सिर्फ एक लिंक दी जाती है कि आई हैव रेड द टर्म्स एंड कंडीशंस। अभी सिर्फ विदाउट इवन यू क्लिकिंग ऑन दैट लिंक, विदाउट इवन यू अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस, ऐसा वन साइडेड जब हम लोग कोई भी टाइप का अश्योरेंस या कंसेंट लेते हैं तो दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कंसेंट। क्योंकि वैलिड कंसेंट के लिए दोनों पार्टीज को व्हाट इज द कंटेंट या व्हाट इज द मैटर या किस चीज का हम लोग अग्रीमेंट कर रहे हैं वो चीज पता होनी चाहिए।
एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स क्लॉज 5 सब क्लॉज 9, it is very necessary, or in fact it is mandatory, that every e-commerce portal or any social media or any body corporate who is taking your personal information, जिसमें आपका फोन नंबर हो गया, आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गए, आपके बैंक डिटेल्स हो गए, आपके हेल्थ कंडीशंस ले लिए या आपके सोशल प्रेफरेंसेस ले लिए, ये सारी जब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है तो इट इज एक्चुअली द ड्यूटी के एक ग्रीवियंस ऑफिसर का नाम इट इज मैंडेटरी के हर वेबसाइट में एक विजिबल जगह पे होना चाहिए. आप मोस्ट ऑफ द और बेस्ट ऑफ द सोशल मीडिया साइट जाइए, बेस्ट ऑफ द ई कॉमर्स पोर्टल जाइए, ग्रीवेंस ऑफिसर का नाम शायद दिया जाएगा, बट वो किसी कोने में या किसी और लिंक पे एक छोटे से इसमें दिया जाता है. What is also important to know is क्या जिस कंपनी को हम लोग हमारा डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, have they taken reasonable security measures to protect our data? क्योंकि ये सारा जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, they are these people or the owners of this company or these companies are basically the custodians of this data. So section 43 of the Information Technology Act makes it mandatory for any company who is handling sensitive information to deploy reasonable security practices for safeguarding the data that has been stored with them. तो to answer this question is कि ये सारी चीजें या ये सारे ड्यू डिलिजेंस अगर हम ध्यान से करेंगे तो डेफिनेटली सोशल मीडिया क्राइम्स या इन जनरल साइबर क्राइम्स रिड्यूस होंगे. थैंक यू आकृति, ओवर टू यू. Thank you, Abhishek sir. That's really informative to know. Normally, we just agree to all the terms and conditions without getting into the intricacies of it. We have another question which I would like to address to Makan sir. The question is coming from Rohit Singh, and this question says that lockdown के समय हमारे शहर में बहुत से लोगों के फेसबुक अकाउंट हैक हो रहे हैं. ये कैसे संभव है कि बल्क में फेसबुक अकाउंट हैक हो? मतलब ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, एक दुनिया है जिसको हम बोलते हैं डार्क वेब और डीप वेब. जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो सिर्फ 15% है. रेस्ट ऑफ द इंटरनेट इज 85%. 85% इंटरनेट है जो जिसको हम डार्क वेब बोलते हैं. डार्क वेब में क्या होता है कि आपका जो आईपीज हैं वो आईपी क्लोन हो जाते हैं. कौन ऑपरेट कर रहा है किसी को मालूम नहीं. अब अलग अलग हैकर्स हैं जो उस वहाँ पे उस फोरम में काम कर रहे हैं. वहाँ पे उनकी ट्रेडिंग चलती है. बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फेसबुक अकाउंट के पासवर्ड्स और यूजर आईडी पासवर्ड्स हैक करके वहाँ पे ट्रेडिंग चलती है डार्क वेब में. और अगर वो कोई परचेज कर लेता है तो फिर वो एक एक करके फेसबुक अकाउंट हैक करना चालू कर देता है. बल्क में कोई चीज होना, यानी अगर मैं किसी बैंक का सर्वर हैक करूं तो वहां से मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एंड देन मैं उसका मिसयूज कर सकता हूं. लेकिन फेसबुक ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहां पे आप मुझे एक्सेस करते समय आइडेंटिटी थेफ्ट करके मुझे आइडेंटिटी और पासवर्ड डालना है और फिर उसको एक्सेस करना है. तो अगर किसी के पास बहुत सारे फेसबुक पासवर्ड अकाउंट्स हैं और वो भी अवेलेबल होने का मार्केट मैंने बताया जैसे डार्क वेब में है, वहां से अगर वो लेके करता है तो यस वो कर सकता है. तो एक आदमी के पास बहुत सारे यूजर आईडी पासवर्ड है और वो हैक कर रहा है. रिसेंटली 3 दिन पहले एक इंफॉर्मेशन आई थी 26 करोड़ लोगों के डेटा, पर्सनल डेटा फेसबुक से चुराया गया और वो 50,000 रुपीज में बेचा गया. यानी आपकी डेटा की ये सर्विस प्रोवाइडर ये वैल्यू रखते हैं. तो आपको सोचना है कि मैं मेरा कौन सा डेटा मेरे इस प्लेटफॉर्म पे रखूं. अगेन एक चीज ये भी है कि गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ कर रही है नहीं कर रही है. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि GDPR जनरल डेटा रेगुलेशन प्रोटेक्शन बिल आया है जो यूरोप में इंप्लीमेंट हो चुका है, जिसमें आपका जो पर्सनल डेटा है किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएगा तो वो प्रोटेक्टेड रखने के लिए कुछ मैंडेट बने. सेम बेसिस पे अपना इंडिया में PDPA पीपल्स डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन बिल आया है, यानी वो अंडर कंसिडरेशन है. अगर ये कोरोना का प्रॉब्लम नहीं होता तो शायद वो अब तक इन्फोर्स हो जाता. तो उसके बाद एक DPA बनेगा, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, और वो जितने भी कंटेंट प्रोवाइडर है उनको कुछ नॉर्म्स बना के देंगे कि आपका जो डेटा है, पर्सनल डेटा है, वो कैसे रखना है. और अगर वो डेटा का वायलेशन होता है तो एक केस में कुछ 15 to 20 करोड़ का पेनल्टी उन सर्विस प्रोवाइडर पे लगेगा. लेकिन टिल दैट टाइम
आपको प्रोटेक्टेड रहना है। ओवर टू यू आकृति। Thank you, Makran sir, for your valuable insight on this. I hope that answers question to Advocate Singh that he had asked. Now we have a lot of questions coming in from the audience. That what we can do is we can address these questions on a personal forum through messages, and we would conclude the session very shortly. Now about the next session, we are planning to get our third session, the next session on the 29th of April, which will be around 5 o'clock. Okay, and of course we'll be discussing other things regarding cash transfer and bank fraud that keeps on happening in the recent era. So I must conclude the session, and thank you audience once again for coming to our second webinar and giving us your valuable time. We really appreciate your involvement into our session. It gives us an opportunity, a lot of opportunity to throw some light on to the ongoing difficulties pertaining to these cyber crimes. Stay tuned. Don't forget to like and subscribe this video.